रूट में लिया जाता है। इसके बनाने की दो विधि, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, इसके बनाने का दो प्रकार आता है। देयर आर टू मेथड्स इन प्रिपरेशन इन इफेक्टिव ग्रेन्यूल्स। फर्स्ट हीट मेथड, सेकेंड इज वेट मेथड। हीट मेथड जो गर्म होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर है 3NH HCl प्लस 6C6H807 प्लस H2O, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, और को हीट करने के बाद उससे प्राप्त होता है C6H5Na3O7 प्लस 3C2 प्लस 3H2O, तो सोडियम सिट्रिक प्राप्त होता है। सेकेंड होगा 2NHHCO3 प्लस CHS6O6, जिसको हीट करने के ये होता है टाराटेरिक एसिड। इसको हीट करने के बाद CHH4Na2O6 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O सोडियम टाराटेरिक एसिड प्राप्त होता है। इसका डिटेल और बताता हूँ। इफेक्टिव ग्रेन्यूल्स, the effective granules are the specific preparation sodium solid doses from a medicament meant for the internal use. The content is the medicament mixed with citric acid, tartaric acid, and tartaric acid and sodium bicarbonate. Sodium sometimes suchin and sources may be added as a sweetening agent before administrations. The discretion qualities in dissolved in water, the acid and bicarbonate required together producing effectiveness. The carbonate water produced from the release of carbon dioxide serves to mask the water and saline taste of drugs. Moreover, carbon dioxide stimulated the flow of the gastric juice and help in the absorption of the medicament. Method of the preparation. There are two methods of the preparation in effective granule. Hard method, wet method, heat method. Heat method, a large precision and the sterilization still provide this the place over the bulking water. Both the dish more sufficient hot before the tartaric powder into the ensure rapid liberation of the water of the crystallizations for the citric acid. In heating of the dish dilated the powder which add to it will heat up slowly and the laboratory water of the crystallizations will go on evaporating stimulations. As a result, sufficient water will not be able to make a coated mask. The water net of the granules is provided from two sources. First, for water and crystallization for citric acid. The citric acid in contain one molecule of water and crystallization which is liberated during heating. Second, the water provided for the reaction of the crystallized acid and tartaric acid with sodium bicarbonate, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर मेथड ये बता चुका हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिटिक एसिड से प्राप्त होता है सोडियम क्रिटिक, टारटरिक एसिड्स को हीट करने के बाद सोडियम टारटरिक एसिड प्राप्त होता है। जनरली हीटिंग स्टेप टेकन्स
1 to 5 minutes dump pass in which passing through a science a preparation the granule of stimulations derivative in an oven at a temperature not exceeding 16 centigrade and then packaged in an air टाइट कंटेनर। दूसरा टाइप होता है जो वेट मेथड, गीला मेथड। Wet method, this is the method is the mixing ingredients are the mosquitoed with in non-evaporation liquid equally alcohol to preparation a carbureted mask which is then passed through a non-heat solvent and directed in over at a temperature not exceeding 16 centigrade. The directed grated are again passed through the swines to break the lump which may be permitted during drying. The drying granule are packaged in air tight containers। अब इसकी हिंदी में बता रहा हूँ। इफेक्टिव ग्रेन्यूल्स दवा का खास तौर पर तैयार किया जाता है सॉलिड डोसेज फॉर्म में, जो अंदर इस्तेमाल के लिए होता है, जो साइट्रिक एसिड, टारटेरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिली दवाई है। कभी कभी मीठा करने वाले एजेंट के तौर पर सैकरीन या सुक्रोज भी मिलाया जाता है। देने से पहले जरूरी मात्रा में पानी में घोल आ जाता है। एसिड और बाइकार्बोनेट एक साथ रिएक्ट करते हैं जिससे इन्फेक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से बाहर कार्बोनेट में पानी दवा में कड़वे और खारे स्वाद के छिपने का काम करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस्ट्रिक जूस से फालों को बढ़ाता है और दवा के एब्जॉर्बेशन में मदद करता है, ग्रहण करने में। तैयार करने की तरीका, इफेक्टिव ग्रेन्यूल को दो प्रकार, हीटिंग मेथड और वेट मेथड। हीटिंग मेथड एक बड़ी ही प्रोसीजर एंड स्टेरिलाइजेशन इस पोर्शन डिश उबलते पानी के बाद में उभर रख कर जाता है। पाउडर को उसी में डालने से पहले डिश काफ़ी गर्म होने चाहिए ताकि क्रिस्टलाइजेशन का पानी साइट्रिक एसिड से तेजी से निकल सके। अगर डिश को गर्म करने में देरी की जाती तो उसे डाला गया पाउडर धीरे धीरे गर्म होता है और क्रिस्टलाइजेशन का निकला हुआ पानी एक साथ इफोक्टेट होता रहेगा। नतीजा एक कोहेरेंट मास बनने के लिए काफ़ी पानी नहीं मिलाएगा। ग्रेन्यूल के लिए जरूरी पानी दो पर्स में होता है। साइट्रिक एसिड क्रिस्टलाइजेशन के पानी से साइट्रिक एसिड के क्रिस्टलाइजेशन के पानी एक मॉलिक्यूल होता है जो गर्म करने के दौरान निकलता है। दूसरा, साइट्रिक एसिड और टारटेरिक एसिड के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन में बना पानी। सोडियम बाइकार्बोनेट जो स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा स्ट्रक्चर, टारटेरिक एसिड आमतौर पर गर्म करने से 1 से 5 मिनट लगते हैं, जिसमें गीले मिश्रण को एक छन्नी में गुजार कर सही साइज में दाने बनाए जाते हैं, जिन्हें ओवन में 60 सेंटीग्रेड 60 सेंटीग्रेड के से ज़्यादा तापमान में सुखाया जाता है। फिर एक एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है। गीला तरीका, इस तरीका में मिली हुई चीज़ों को एक नॉन एकरस सिलिकेट जैसे अल्कोहल में गीला किया हुआ जाता है ताकि एक मिला जुला मिश्रण तैयार हो सके, जिसे फिर एक नंबर 8 छन्नी से गुजार कर ओवन में 60 सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान में सुखाया जाता है। सेंटीग्रेड सुखाने दोनों को फिर से छन्नी से गुजारा जाता है ताकि सूखने के दौरान बनने वाले गांठें टूट जाए। सूखे दानेदार को एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है।